السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سکندر ہے اور میں آخان ہیلتھ سروسز پاکستان میں کام کرتا ہوں ایز اے کنسلٹنٹ فیملی میڈیسن. آج کا سیشن جو ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. کیوں دلچسپ ہے؟ اس لیے کہ بارشیں ہوئی ہیں، رمجم ہے، گرمی میں تھوڑی کمی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ بھی اس سے وابستہ ہے. تو آج کا سیشن جو ہے وہ ان ہیلتھ ایشو جو رمجم اور بارش کے ساتھ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی بات چیت ہم کریں گے کہ ایشو کیا ہے، ان ایشو سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر یہ پرابلم ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایکچولی جب ہم ان مسئلے کی بات کرتے ہیں تو بیماری کو اگر دیکھتے ہیں تو یہ دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے. ایک بیماری کا وہ حصہ ہے جو کہ کمیونیکیبل کہلاتا ہے، یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل ہوتا ہے، اور اسی میں ہمارے بیماری کے حوالے سے یہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کا تعلق ہے. دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ نان کمیونیکیبل کا ہوتا ہے، جہاں پہ کہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو منتقل نہیں ہوتا، جیسے کہ بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، ڈپریشن ہے، کینسرز ہیں. تو آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اوپر ہے، اور اسپیشلی ان کمیونیکیبل ڈیزیزز کے اوپر ہم بات کریں گے جو کہ بارش ہونے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ لوگ کافی سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم ملیریا، ٹائیفائڈ، ڈائریا، ان چیزوں کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم پہلے لیتے ہیں ٹائیفائڈ. ٹائیفائڈ ہے کیا؟ ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے جو آلودہ کھانا اور آلودہ پانی سے پھیلتا ہے، اور یہ ایک فرد کے اندر اگر ہوتا ہے تو وہ باتھ روم کے ذریعے اخراج ہوتا ہے، اور جو وہ فرد یا مکھیاں اگر ہوتی ہیں تو وہ اس کو منتقل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک فرد کے اندر یہ جراثیم ہے اور وہ باتھ روم میں گیا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، اپنا ہاتھ صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتا، اور وہی ہاتھ اگر وہ پانی کے اندر ڈالتا ہے اور اگر وہی پانی جتنے بھی افراد پئیں گے تو یہ منتقل ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر وہ باتھ روم والی چیز کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی اور اس میں وہ جراثیم ہیں، اور وہ مکھیاں کسی طریقے سے کھانے کے اوپر جاتی ہیں اور وہ کھانا اگر کوئی فرد کھاتا ہے تو اس کو منتقل ہو جائے گا. تو یہ ایکچولی ٹائیفائڈ کی خصوصیت ہے کہ یہ کس طریقے سے پھیلتا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم سالمونیلا ٹائفی ہے اور دوسرا ہے سالمونیلا پیراٹائفی. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں. اگر ہم علامتوں کے اوپر دیکھتے ہیں تو بخار اس کی مین علامت ہے، لیکن اس کو ہم شروع کے حصے میں دیکھتے ہیں تو سر میں درد، سستی، تھکاوٹ، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو بخار لے کے آتا ہے، اور یہ بخار ایک سٹیپ لیڈر پیٹرن کی صورت اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک دن اس کو 100 ہے تو دوسرے دن 101 ہو جائے گا، تیسرے دن 103 ہو جائے گا،
اور اس میں تھوڑی تھوڑی سردی بھی لگتی ہے، اور اس کی ایک اور خصوصیت ہے کہ اس میں سر میں درد اور پیٹ میں درد زیادہ ہوتا ہے۔ پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جیسے ہی پیٹ میں پہنچتا ہے تو یہ پیٹ کی آنتوں کو متاثر کرتا ہے، اور اسپیشلی چھوٹی آنتوں کو متاثر کرتا ہے۔ تو یہ اس کی کچھ علامت ہے۔ اکثر کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس بخار کو دیکھتے ہوئے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ مختلف قسم کی اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ تشخیص نہیں کرتا اور ایڈیکویٹ ڈوز میں نہیں دیتا اور پورے دورانیے تک نہیں دیتا تو پھر اس کو پیچیدگیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس کا دورانیہ لمبا بھی ہو سکتا ہے اور تشخیص کرنے میں بھی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ آپ کوالیفائڈ پریکٹیشنر کی طرف جائیں اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور اس کی ہسٹری جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کی تشخیص جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ خون کے ٹیسٹ ہیں، لیکن ایک اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائیفائڈ کا جس کو ہم بلڈ کلچر کہتے ہیں۔ یہ بلڈ کلچر اس کا اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ 5 سے 7 دن کے اندر ہمیں جواب دیتا ہے۔ اب یہ تو ہم نے تھوڑی سی اس کی علامتوں، تھوڑی سی اس کی علاج کے بارے میں بات کی ہے، لیکن اس سیشن کا دوسرا مقصد اور کی میسج جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس سے کیسے بچیں۔ تو اگر یہ پھیلنے کی بات آتی ہے تو ہم نے جیسے کہا آلودہ کھانا اور آلودہ پانی سے بچا جائے۔ اب اس کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میسج وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ جو بھی کھانے کی چیزیں آتی ہیں، اسپیشلی جب ہم سبزیوں کی بات کرتے ہیں، اس کو اچھی طریقے سے دھویا جائے۔ گندے پانی کا نکاس جو ہے وہ اچھی طریقے سے کریں، اور جو سسٹم ہے اس کے اندر جو گندے نالی ہیں اس کو کھلا نہ چھوڑیں اور اس میں اس کے ڈھکنے کا استعمال کریں۔ جب بھی ہم باتھ روم کے اندر جائیں تو اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھوئیں، اور ویسے بھی چاہے ہم کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، باتھ روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے کے بعد، یہ سب سچویشن کے اندر ہمیں اپنے ہاتھ کو صاف رکھنا ہے اور اچھی طریقے سے ہاتھ کو دھونا ہے۔ گلے سلے پھل کا استعمال نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو باہر کی طرف کھانا ہے جو کہ مکھیاں بن بنا رہی ہوتی ہیں، اس کھانوں سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسج ہے اس کے پریونشن کے لیے۔ جب ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر یہ بیماری ہو گئی ہے تو بھی ہمیں مکمل علاج کے ساتھ اس کے ذہنی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اور جسمانی طور پر، یعنی ہولسٹیکلی ہمیں اس کا علاج کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے کچھ ویکسینز بھی ہیں جس کے اوپر ہم تھوڑی بات چیت کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویکسین کے اوپر بات کریں، ایک اندازے کے مطابق جو ہے 1 سال کے اندر 16 ملین لوگ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ
जिसमें से काफ़ी लोग जो हैं वो पेचीदगियों के शिकार होते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ आलूदा खाना और आलूदा पानी का इस्तेमाल भी है, तो इसलिए हमारे मुल्क में भी इसकी पेचीदगियाँ और इसकी वजह से अमवात जो हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं। जब हम इसको वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, तो इसका एक वैक्सीन जो होता है वो टैब वैक्सीन कहलाता है, जिससे बीमारी की शरह की शिद्दत में यकीनन कमी वाक़ई होती है। और ये पहले महीने में लगता है, फिर दूसरे महीने में लगता है, और फिर साल में इसको लगाया जाता है। एक ओरल वैक्सीन भी है जो कि मुंह के ज़रिए ली जाती है, और जो कि हम अगर ऐसे इलाके में सफ़र करते हैं उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस वैक्सीन को हर दूसरे दिन एक कैप्सूल खाली पेट पानी या दूध के साथ लेना होता है, और टोटल 3 से 4 कैप्सूल खाए जाते हैं। ये ओरल इसका वैक्सीन है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इन वैक्सीन के साथ हमें जो होता है वो 100% हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमें आलूदा खाना और आलूदा पानी और सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये तो मैंने एक मिसाल दी थी टाइफाइड की। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये भी इसी तरीके से मुंतकिल होता है। लेकिन फर्क हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में ये होता है और टाइफाइड में कि इसके भी अलामत में बुखार, सर में दर्द, भूख ना लगना और उल्टी। लेकिन इसके दूसरे हफ्ते में क्योंकि ये जिगर में सोजिश करती है, इसलिए इसमें पीलिया हो जाता है, और फिर तीसरे हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता ये पीलिया कम होता है और ये रिजॉल्व हो जाता है। इसके अंदर एक चीज का वाजे कर देना चाहता हूँ कि हेपेटाइटिस ए का हम वैक्सीन लगा सकते हैं और उससे बच सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ई का जो वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और ये देखा गया है कि हेपेटाइटिस ई जो होता है अगर हमल के दौरान होता है तो उसके अंदर पेचीदगियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या है? हेपा और टाइटिस। हेपा मीन्स जिगर, टाइटिस मीन्स जिगर में सोजिश। तो ये होता है जहाँ पे कि आलूदा खाना और आलूदा पानी जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई की वजह से है। मैसेज ये है कि हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ई का वैक्सीन नहीं है। और अगर हेपेटाइटिस ई हमल के दौरान होता है तो वो काफ़ी पेचीदगियाँ कर सकता है। इधर ही मैं एक और चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ एक मैसेज के अंदर कि दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी भी होता है, लेकिन ये आलूदा खाना और आलूदा पानी से नहीं फैलता। ये मुंतकिल होता है गैर महफूज औजार, गैर महफूज सिरिंज, गैर महफूज खून के तबादले से और मुतासरा माँ से बच्चे को। क्योंकि इस वक्त हम बरसात के बीमारी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा एम्फेसिस जो है वो बीमारियां हैं जो आलूदा खाना और आलूदा पानी से फैलता है। अब हम एक बहुत अहम बरसात की बीमारी की तरफ आते हैं जो कि मलेरिया है। मलेरिया, अब मलेरिया होता क्या? मलेरिया भी एक ऐसा बुखार है जो कि मॉस्किटो मच्छर के बाइट से फैलता है, और ये फीमेल मॉस्किटो से फैलता है। जब ये मच्छर काटता है तो उसके मुंह से कुछ स्पोरोजोइट्स निकलते हैं,
जो कि खून के अंदर जाते हैं और जिगर में जाके पहुंचते हैं। वहां पे उनकी थोड़ी साइकिल मुकम्मल होती है और फिर ये खून के अंदर आते हैं। वापस सवाल होगा कि इसकी अलामतें क्या हैं? इसकी अलामतें 3 फेजेस में हैं। पहला फेज जो है वो अलामत है जहां पे के कपकपी होती है। इसमें कपकपी को हम 2 में बांटते हैं। एक होता है चिल, यानी जहां पे के ठंडक महसूस होती है लेकिन कपकपी नहीं होती। दूसरा होता है राइगर्स, जहां पे के ठंडक भी होती है और फिर उसको कपकपी भी तारी होती है। ये 1 घंटे तक रहती है। उसके बाद उसको बुखार आता है। इस 103 या 104 बुखार होता है। उसके सर में दर्द होता है, उसको उल्टियां वगैरह भी हो सकती हैं, बदन में दर्द हो सकता है और फिर 2 से 3 घंटे में ये बुखार उतर जाता है। अगर हम इस बुखार की किस्मों को देखते हैं तो इसकी 4 किस्में होती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेरी, प्लाज्मोडियम मलेरी और एक प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। इन चारों को बताने का मकसद ये है कि इसमें से जो खतरनाक है, जो कि दिमाग को असर करता है, जिसको हम सेरिब्रल मलेरिया कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की वजह से होता है और इसकी वजह से बहुत पेचीदगियां और मौत भी वाक़ई हो सकती है। इसका इलाज बहुत आसान है और इसकी तशखीस भी आसान है और इसके मुताबिक हम अगर दवाइयाँ देते हैं तो उसको जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है कि जिसको हम क्रॉनिक मलेरिया कहते हैं, जिसमें खून की कमी हो जाती है और स्प्लीन बढ़ जाती है, जिसको हम तिल्ली कहते हैं। ये क्यों बढ़ती है? इसलिए कि जब इनको बुखार आता है तो हम उसको दवा देते हैं तो वो टेम्पररी उन मलेरिया के पैरासाइट को खत्म करता है जो खून के अंदर हैं। लेकिन कुछ पैरासाइट जो हैं वो जिगर में छुपे हुए होते हैं, जो कि कुछ मुद्दत के बाद वो जिगर में से निकलकर वापस आ जाते हैं खून के अंदर और उसको बार बार बुखार आता है। इसलिए ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तशखीस का हिस्सा होना चाहिए कि इसको इस बुखार से कैसे बचाया जाए। इस बुखार से बचाने के लिए जो है पहले G6PD का टेस्ट करते हैं, जिसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। अगर इसकी डेफिशिएंट होती है तो मुख्तलिफ दवा दी जाती है और अगर उसकी डेफिशिएंट नहीं होती तो मुख्तलिफ दवा दी जाती है। जैसे अगर डेफिशिएंट नहीं होती है तो प्राइमाक्विन उसको दी जाती है, जो कि 2 हफ्ते तक देते हैं और उसको ये बार बार बुखार का आना खत्म हो जाता है। वापस एक मैसेज और एक सवाल कि क्या मलेरिया से बचाया जा सकता है? हाँ, बहुत आसानी से हम मलेरिया से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? इसकी कुछ चीजें हैं जिसको हमें देखना चाहिए। सबसे पहला काम जो है कि मच्छरों की अफजाइश को रोका जाए और इसके लिए गंदे पानी की निकास का ख्याल रखें। नालियां ढकी हुई हों और वक्तन फवक्तन इनकी सफाई और मच्छर मारने की अद्वियात का छिड़काव करें। ये बहुत अहम चीज है जिसको हमें बहुत ख्याल रखना है। दूसरा जो है, घर के आसपास घरों में पानी जमा न होने दें। फालतू घरों में पानी वगैरह डालकर फिर इसको बंद कर दें और घरों में पानी जमा होने की सूरत में मिट्टी का तेल दें ताकि पानी में मच्छरों की अफजाइश ना हो।
कमरे के दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों पर जाली लगवाएं। अपने घरों में रोजाना मच्छर मार अद्वियात का इस्तेमाल करें और बाजार में ऐसे अच्छे लोशन दस्तयाब हैं जिनको बदन में लगाने से ये बीमारी फैलने से रुकती है और लगने से भी। अगर हम इन दो चीजों को देखते हैं तो आज हमने टाइफाइड के बारे में बात की, मलेरिया के बारे में बात की, हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बात की, उनके बचाव के लिए हमने बात की। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कि हम इनफरादी तौर पर हमें इसकी मालूमात और बासलाहियत होना चाहिए ताकि हम महफूज फैसला कर सकें इसकी इलाज के लिए और इसके बचाव के तरीके के लिए। जब एक फर्द इसको इस्तेमाल करता है और जब घर के पूरे अफराद इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, माशी तौर पर, माशरती तौर पर आप अपने आप को महफूज रखते हैं। जब एक घर और उस इलाके के सब अफराद इस्तेमाल करेंगे तो पूरा इलाका सेफ हो जाएगा। जब सब इलाके वाले इस्तेमाल करेंगे तो पूरा टाउन सेफ हो जाएगा। जब सब टाउन इस्तेमाल करेंगे तो सूबा सेफ हो जाएगा। जब सूबा सेफ हो जाएगा तो मुल्क सेफ हो जाएगा। और हम सब का एक ही मकसद है कि इन बीमारियों से हम पाक रहें ताकि हम बीमारियों से बचें और हम इन बीमारियों की बदतरतीब हिफाजती तदाबीर इस्तेमाल करें ताकि हम महफूज हो सकें और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को महफूज कर सकें। आखिर में मैं एक जो आजकल जो वबा है जिसको कोरोना ने काफ़ी मुतासिर किया हुआ है, अगर हम छोटा सा मैसेज लेते हैं तो क्या होता है कि अगर हम कोरोना के एपिडेमिक को देखते हैं तो क्या होता था कि पहला एपिडेमिक का फेज तो था जिसमें पाकिस्तान भी था और दुनिया के बहुत से मुमालिक भी थे, जिसमें कौन सा फेज आ रहा था? डिनाइल का फेज आ रहा था, एक्सेप्टेंस का फेज नहीं आ रहा था। फिर जब हम उस डिनाइल के फेज से आए कि ये एक मसला है जिसको हम इनफरादी तौर पर हल नहीं कर सकते, हमें मजमूई तौर पर हमें हल करने की कोशिश करनी है, तो हमने इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की। जब हमने इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की तो हमने प्लानिंग फेज के ऊपर आए। जब हमने इसके प्लानिंग फेज के ऊपर आए तो हमने इसको ऑपरेशनलाइज किया। अब जब हम प्लानिंग फेज की बात आए तो आप देखें कि उस एपिडेमिक को पहला फेज किया था कि हमने आइसोलेशन किया, हमने लॉकडाउन किया, हमने अपने आप को इस तरीके से बचाने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि ये वायरस है और ये एपिडेमिक है, हमने इससे सीखना शुरू किया। जब हमने इससे सीखना शुरू किया तो हमने देखा कि ये ठीक है, लॉकडाउन एक स्ट्रेटजी हो सकती है, आइसोलेशन एक स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जब तक हम इनफरादी तौर पर इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम इससे महफूज नहीं हो सकते। क्योंकि ये ऐसा है जहाँ पे कि एपिडेमिक अप डाउन हो रहा होता है और अभी तक इसके वैक्सीन के ऊपर काम हो रहा है और ये इतना फ्रेजाइल है कि उसका शेप भी चेंज हो रहा है। तो इसके लिए एक मैसेज जो की मैसेज देना चाह रहे हैं वो ये देना चाह रहे हैं कि इनफरादी तौर पर हमें इससे बचने की ज़रूरत है ताकि हम इसको रूटीन के काम से, अपने रूटीन को, काम को डिस्टर्ब किए हुए, नुकसानी से बचते हुए, इकोनॉमिकल सिचुएशन को बेहतर करते हुए हम अपने काम को भी जारी रखें और इससे भी हम
सलाहियत होना होगा ताकि हम इंफरादी तौर पर अपने आप को इससे बचा सकें। ये क्यों ज़रूरी है? जब हम बासलाहियत होंगे तो हम महफूज फैसला कर सकेंगे। जब हम महफूज फैसला कर सकेंगे तो इस फैसले के अंदर इंफरादी तौर पर तो सब अपनी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन जब सब लोग इंफरादी लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन करेंगे तो क्या होगा? वो मजमूई शक्ल ऑफ प्रोटेक्शन सामने आ जाएगी। जब वो मजमूई शक्ल ऑफ प्रोटेक्शन सामने आ जाएगी तो आप इस कोरोना वायरस से बच सकेंगे। ना सिर्फ बच सकेंगे बल्कि उसके एपिडेमिक, इसके फैलाव और आप इंफरादी से एक इलाके और एक मुल्क को आप बहुत सारी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। मेरे कहने का मकसद है, क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं, लॉकडाउन की बात करते हैं, आइसोलेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे इसके जिस्मानी, ज़हनी और माशी और माशरती असरात होते हैं। लेकिन जब एक फर्द को आइसोलेट किया जाता है, आप इमेजिन करें कि उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो कैसे मुतासिर हो सकती है। जब उसकी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है, एक फर्द अपने घर को देख रहा होगा, बच्चों की तालीम को देख रहा होगा, अपनी सर्विसेज को देख रहा होगा, अपने माशी डिसीजंस को देख रहा होगा। उन सबको मद्देनजर रखते हुए अब ये स्ट्रेटजी का दूसरा फेज है जहाँ पे कि इनफरादी तौर पर हमें इन चीज़ों से बचना है। इसमें 5 इम्पोर्टेंट मैसेज हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये वायरस घर करता है, नाक के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइनस होता है जो कि मॉइस्चराइज होता है। वो वायरस जो है वो उधर तक पहुंचता है। इसका मतलब कि वो सांस के जरिए और उसके जरिए फैल सकता है। तो अगर मैं मास्क पहनूंगा तो क्या होगा? इससे फैलने से रुकेगा। अगर ये जाता है और डिफरेंट तरीकों से फैलता है तो मुझे अपने हाथ को सेफ करना है, तो मुझे ग्लव्स पहनना पड़ेगा। जब मैं ग्लव्स या पहनता हूँ तो मैं प्रोटेक्ट करता हूँ। इसी तरीके से जब हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं, और इधर मैं सर्विस डिलीवरी सिर्फ हेल्थ पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा हूँ, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ, बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ, लेबर पर्सपेक्टिव से भी देख रहा हूँ। तो अगर उन सब के अंदर अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जिसमें हम सफाई का ख्याल रखें, हाथ ग्लव्स पहने, मास्क पहने और पीरियोडिकली हम उन अलामतों की तरफ बतरतीज देखें जिसमें हमें ऐसा लगे कि ऐसा कुछ है तो हमें ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इधर मैं एक मैसेज वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि कोई पैनिक नहीं होना चाहिए जब हम इस बीमारी या बचाव की बात करते हैं, क्योंकि इस बचाव का ताल्लुक मुदाफ़ती निज़ाम से बहुत ज़्यादा है। जो कि हम यंग अडल्ट्स की बात करते हैं, इवन ओल्ड अडल्ट्स की बात करते हैं, तो उनका कॉम्पिटेंट मुदाफ़ती निज़ाम होता है। जब उनका कॉम्पिटेंट मुदाफ़ती निज़ाम होता है तो उसके अंदर अगर ये वायरस आता भी है तो वो अपने मुदाफ़ती निज़ाम के ज़रिए इसके ऊपर कंट्रोल पा जाता है। लेकिन हमें उन अफराद की सपोर्ट और फैसिलिटेशन करनी है जिनका मुदाफ़ती निज़ाम कम है, जो कि रिस्क के ऊपर है। मिसाल के तौर पर जिनको कैंसर्स हैं, जिनको खांसी की शिकायत है, जिनको डायबिटीज़ है, जो कैंसर की दवाइयों के ऊपर हैं, जिनको कुछ जोड़ों की बीमारियों के ऊपर हैं, जिनको जो जोड़ों की दवाइयाँ लेते हैं, उनको हमें सपोर्ट और फैसिलिटेट करना है, उनको एम्पावर्ड करना है, उनको हमें फैसिलिटेशन इस तरीके से करनी है कि हम उनको पैनिक होने से रोकें, हम उनका टाइम पे इलाज कराएं और हम उनके टाइम पे तशखीस करें
اور ہم ان کے ٹائم پہ نیوٹریشن کا خیال رکھیں. اور اسی دوران میں اگر ہم نیوٹریشن کا خیال رکھتے ہیں، پانی کا خیال رکھتے ہیں، فلوئڈ کا خیال رکھتے ہیں، فروٹس کا خیال رکھتے ہیں، فروٹس کا خیال رکھتے ہیں جو کہ ہمارے مدافعتی نظام کو کمپیٹنٹ کرتا ہے، تو ہم اگر یہ میسیجز ان لوگوں کو یہ بھی دیں جن کا مدافعتی نظام اگر رسک پر ہے، تو ہم پورے ملک کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں. آخر میں ہیلتھ بورڈ فار حیدرآباد، کاؤنسل فار حیدرآباد، جن کی کاوش سے یہ سیشن ہوا ہے اور وہ بتدریج ایسے سیشنز کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو اویئر ہو اور سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی میں آخان ہیلتھ سروسز پاکستان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اپارچونیٹی دی، اور لوکل ہیلتھ بورڈ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپارچونیٹی دی اس سیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے.